Good morning, everybody. Today we'll be discussing the indirect tax laws paper 5, which was held in this May 24 examination. In-depth discussion will be made. Most of the questions they were asked from our short questions also. They were given in the revisionary test papers also. Amendment-based paper was amendment-based paper, and students can score say good marks in case if they have done those amendments and the revisionary test papers and our short questions. And in short questions we have provided those questions, and MCQ based questions have also been asked from the questions which we have given in our short questions. So mostly the entire paper they were covered here also. Say we have discussed about the amendment which was there in compounding rules, basically compounding amount, that amendment question was there. Online gaming, everywhere it was covered, that was there. Corporate guarantees, we already discussed the same. And in our mock test series also, those questions have been provided. So let us now start the discussion, in-depth discussion relating to the same. तो देखिए पहला question जो है, what was the first question? It's a comprehensive question always and covering various aspects. Most of the aspects have already been covered in the various past exam questions also, and some amendments were there here also. So first question we are discussing in depth. So XYZ Limited is a registered supplier under GST in the state of Tamil Nadu. कहाँ पे है ये? Is in the state of Tamil Nadu and is engaged in providing various kinds of supplies of goods and services. किसमें engaged है? He is providing various kinds of supplies of goods and services, and he provides the following information for the month of October. They are giving the information for the month of October 23. Now number one is they have supplied consignment of goods in territorial waters to Vikram Industries. Vikram Industries is registered in Kerala. They have supplied consignment of goods in territorial waters. Now we have seen section 9 of the IGST Act, which provides for what supplies in the territorial waters. Now what will be the place of supply we have discussed there? It is the nearest coastal state from the appropriate baseline. Now here the said territorial waters is located at a distance of 12 nautical miles from the baseline of state of Kerala and 11 nautical miles from the baseline of state of Tamil Nadu. So here the nearest coastal state will be what? Nearest coastal state will be Tamil Nadu. Place of supply will be where? Place of supply will be in Tamil Nadu. Now location of the supplier is in Tamil Nadu. Place of supply is in Tamil Nadu. The same will be regarded as an intrastate supply. It is a intrastate supply. Remember, it's an intrastate supply. And it will be subject to CGST plus SGST. It will be subject to what? CGST and SGST. Okay. Now you can see here the rates have been also provided. The rates of GST is 9%, 9%, and CGST and SGST is 99%, IGST is 18% for both inward and outward supplies of goods and services. So here we have to find out the GST element. GST, what will be the GST element? 45,000 will be the CGST element and 45,000 will be the SGST element. So it was a very simple one which has already been asked in the examination earlier also. Then provided pure labor services of construction of single commercial unit. Remember, it is commercial unit, single commercial unit located in Delhi. Where the unit is located? Located in Delhi and not forming the part of residential complex to a customer in Delhi. Now in case if it is a single residential unit, then the same is exempt. Exemption is in respect of say single residential unit. Residential unit. But since it is a commercial unit, since it is what? A commercial unit, क्योंकि ये commercial unit है, exemption will not be available and the place of supply is where? The place of supply will be
where the immovable property is located. So place of supply is say in Delhi, location of supply is in Tamil Nadu, place of supply is in Delhi, the same will be subject to IGST. 12 lakhs into 18%. Most of the students have committed a mistake here. Some students have made the same exempt. So here, this is not basically exempt. So it will be subject to IGST, and 12 lakhs into say 18% will be how much? Here the liability will be 2 lakh and 16,000 rupees. That will be what? IGST. This is IGST. Next, they are saying that he has supplied 25 televisions over the counter to Mr. Vijay. He is an unregistered buyer who took it to his residence in Haryana. Now, if the further information has been provided, let's see the question. If further information has been provided, whether he has given the name of a state, then if the name of state is recorded in the invoice, then the place of supply will be that place. Otherwise, it will be the location of the supplier. This is a amendment which has been introduced in this time under section 10(1) CA. So this is amendment based. So here the value of supply, as you are aware, it's a 14 lakh is a value of supply. Let us see where the place of supply is in notes. If any further information has been provided, go for the notes. Now here, look, invoice issued to Mr. Vijay for television mentions only his name and state. So even if the state has been mentioned here, when the state has been mentioned, that means what? That will be taken as the place of supply. They have been given an explanation for this here. Same complete address of Haryana is missing in the invoice. So basically here the place of supply will be Haryana. So it will be subject to IGST of 18%. It will be subject to IGST of 18% on 14 lakh rupees. 18% IGST will be levied. That is what? 2 lakh and 52,000 rupees will be the IGST. Okay. Then this was relating to the, the outward supplies. Then next is received a debit note inward supply. This inward supply will be for the purpose of computation of ITC. It will be helpful for what? Computation of the input tax credit. Let us see what this says. Received a debit note in respect of inward intrastate taxable supplies. It is a intrastate taxable supplies received in financial year 2021. Now, as you are aware, debit note have now been delinked with the date of issuance of invoice. We will be entitled to take the credit. Whenever the debit note has been issued, in which financial year, the same has been issued up to 30th November, succeeding financial year will be entitled to take the credit. Now, irrespective, when the supplies have been received, they have given the debit note, and these inward supplies were used for all goods manufactured in factory. Now, date of debit note is 17th of October 23. So here we will be entitled to take the ITC in respect of the same. You have to write that since the debit note has been received in financial year, that is on 17th of October 23, irrespective when the supplies have been received, you will be what? Entitled to avail the input tax credit. So it is an intrastate supply. So here we will be entitled to take the credit of CGST 27,000 and SGST 27,000. Remember, working notes are also very, very important. You have to write that here ITC on debit notes which are issued in a financial year, they can be availed at any time till 30th November of the succeeding financial year or the date of filing of the relevant annual return, which I said earlier. So here, irrespective, this date of debit notes have been now delinked. Issuance of debit note have been delinked with the issuance of the invoices. Next, remember, purchase silk yarn. This silk yarn is to be used as raw material from Mr. Ravi, who manufactures silk yarn from raw silk. Mr. Ravi is registered in the state of Rajasthan. Now here, if you are purchasing silk yarn for manufacture of silk, same is also we have seen this time they have given the reverse charge mechanism in respect of goods. So that has been covered under the reverse charge mechanism.
Now we have seen the same in our compiler also. We have given the entire table. Basically, you can see the same. That is here silk yarn is there, and any person who manufactures silk yarn from raw silk or silkworm cocoons for supply of silk yarn, he is a supplier. Who is the recipient? The registered person. RCM is applicable. So remember, the same will be covered under reverse charge mechanism. What is the value of supply here? Value of supply is 8 lakh rupees. Value of supply is 8 lakh rupees, and here, as you are aware, the supply is from supplier is in Rajasthan, and supply is made in the state of Tamil Nadu. So basically, supplier is where? In Rajasthan, and movement of goods terminates in Tamil Nadu. So place of supply here is in Tamil Nadu, where the movement of goods terminates. It will be subject to IGST, and on 8 lakh rupees, 18% is the IGST. 18% is the IGST. So on 8 lakh rupees, 18% is the IGST. It will be 1,44,000 rupees. Remember, this is the IGST. And here, same is also liable to be taxed under RCM. Under RCM. So remember, this will also be covered under reverse charge mechanism. So this 144, when we compute our output tax liability, it will be covered under RCM. So this will be under RCM. Then availed services of arbitral tribunal in Chennai. Availed services of arbitral tribunal in Chennai. Tamil Nadu, for a work to settle a case relating to the Companies Act. So we have already seen that if you avail services of arbitral tribunal, then same is covered under the reverse charge mechanism. Now here, what is the company's turnover? Let us see if they have provided the turnover of our preceding financial year. So here the turnover of XYZ Limited for the preceding financial year is 190 lakhs. So here the turnover of the business entity to whom these services are provided, that is XYZ Limited, is 190 lakhs. So said services are liable to tax. It will not be exempt. They are liable to tax under RCM, under reverse charge mechanism. The same will be liable to be taxed under reverse charge mechanism, and on 6 lakh rupees, tax will be levied under RCM. Okay, this is in Chennai. So here CGST will be levied and SGST will be levied at rate of 99% each. 99% each, that is 54,000 will be the CGST element, 54,000 will be the SGST element. The same will be covered under the reverse charge mechanism. We will be required to pay tax under RCM. So these two supplies, they are covered under RCM. Remember, this will be added in our output tax liability, that is supplies taxable under RCM, that is to be paid through electronic cash ledger only, though we are entitled to avail the ITC of the same. Then next is purchase raw material from ABK Limited registered in state of Andhra Pradesh. So here we will be entitled to avail the ITC, but see if any further information has been provided or not. So now they have said that ABK Limited is mandatorily required to issue e-invoice. Now ABK Limited is mandatorily required to issue e-invoice. However, it did not issue e-invoice with invoice reference number. Now in case if invoice reference number is not available in the invoice, it will not be a valid document, although the invoice are reflected in form GSTR 2B, but fundamental thing is not a valid document, you won't be entitled to avail ITC. So here, since this ABK Limited invoice does not bear invoice reference number, ITC cannot be availed. ITC cannot be availed in respect of the same. You won't be entitled to avail the ITC. Then purchase a new truck from dealer in Cochin, Kerala for transport of materials. You will be entitled to avail ITC, but they have given the information that the company has claimed depreciation under the Income Tax Act
on the value of new truck purchased, including all applicable taxes. So here, since depreciation has been claimed on ITC element, on से GST element, sorry, GST element, क्योंकि डेप्रिसिएशन आपने क्लेम कर लिया किस पे, GST एलिमेंट पे, ITC विल नॉट बी एडमिसिबल, विल नॉट बी एडमिसिबल. यहाँ पे आपको ITC एडमिसिबल नहीं होगा, यू वोंट बी एंटाइटल टू अवेल दी ITC. उसके अलावा देखिए, द कंपनी हैज प्रोवाइडेड कॉर्पोरेट गारंटी ऑफ 2.5 करोड़ टू BHY लिमिटेड टू इट्स रिलेटेड कंपनी. ये रिलेटेड है, कॉर्पोरेट गारंटी प्रोवाइड की है, हैविंग रजिस्टर्ड ऑफिस इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. तो ये अभी इस बार का अमेंडमेंट आया था, रूल 28 के अंदर अपन ने देखा था कि भाई यहाँ पे अगर रिलेटेड पर्सन को ये प्रोवाइड करते हैं विदाउट कंसिडरेशन ऑल्सो, तो ये कॉर्पोरेट गारंटी विल बी लायबल टू टैक्स. वैसे वैल्यू क्या हो जाती है, वैल्यू क्या हो जाएगी, ये डीम्ड सप्लाई के एम्बिट में आ रहा है, रिलेटेड पर्सन को इवन विदाउट कंसिडरेशन, सेम इज कवर्ड इन शेड्यूल 1. वैल्यू क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी 1% ऑफ द अमाउंट ऑफ सच गारंटी ऑफर्ड. वैल्यू हो जाएगी 1% ऑफ अमाउंट ऑफ गारंटी ऑफर्ड, और एक्चुअल कंसिडरेशन, विच एवर इज हायर. गारंटी कितनी ऑफर की है, 2.5 करोड़ है, तो 2.5 करोड़ का 1% हो गया कितना, 2.5 लाख रुपए हो गया, 2,50,000 हो गया. ये वैल्यू हो जाएगी वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, ये वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई हो जाएगी, और इस पे GST लग जाएगा. अब ये महाराष्ट्र में तो IGST विल बी levied एट रेट ऑफ 18%. IGST यहाँ लग जाएगा एट रेट ऑफ 18%. तो ये हो गया अपना 2.5 लाख इंटू 18%, 45,000 रुपये. ये भी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में आपके जुड़ जाएगा, यहाँ ध्यान रखिएगा जहाँ आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है. तो अगर अपन आउटपुट टैक्स लायबिलिटी का स्टेटमेंट बनाते हैं, एक बार ध्यान रख लीजिएगा, ये 45,000 रुपये भी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में जुड़ जाएगा. ये अपन ने डिस्कस कर ही लिया. अब इन मंथ ऑफ मार्च 23 द कंपनी अवेल्ड सर्विसेज in interstate transactions with a taxable value of ₹9 lakhs and a tax rate of 18%. अब ये ट्रांजेक्शन वो लायबल टू टैक्स अंडर RCM, ये RCM के तहत टैक्स लगना था इस ट्रांजेक्शन पे. पेमेंट फॉर द सेम वॉज नॉट मेड टिल करेंट मंथ, वर ड्यू फॉर 181 डेज ड्यूरिंग अक्टूबर 23. अब क्या रिवर्सल करना है क्या ITC का, यहाँ पे कोई रिवर्सल की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिंस सप्लाईज वर लायबल टू बी टैक्स अंडर RCM. कोई रिवर्सल की रिक्वायरमेंट यहाँ पे, नो रिवर्सल ऑफ ITC विल बी रिक्वायर्ड, क्योंकि अपन ने वो देखा हुआ है वहाँ 180 डेज वाले क्राइटेरिया रिवर्स चार्ज सप्लाईज पे अप्लाई नहीं होता है. ठीक है, तो यहाँ कोई रिवर्सल करने की जरूरत नहीं है. हाउ द टैक्स ड्यू ऑन द सेट ट्रांजेक्शन वॉज पेड एंड ITC वॉज अवेल्ड इन द मंथ ऑफ ट्रांजेक्शन. द अकाउंटेंट ऑफ द कंपनी डिड नॉट क्लेम ITC इन रिस्पेक्ट ऑफ डेबिट नोट रिसीव्ड फॉर द रीजन दैट ओरिजिनल परचेज वॉज रिलेटेड टू अर्लियर ईयर्स फॉर विच ITC क्लेम वॉज एलिजिबिलिटी वॉज हैज बिकम बार्ड. इससे कोई मतलब नहीं है, आपने बता ही दिया कि डेबिट नोट्स और इनवॉइस की डीलिंकिंग अब हो चुकी है. ये हम डिस्कस कर ही चुके, इनवॉइस इशूड IRN वाला बात हम कर चुके, ये स्टेट वाली बात हम कर चुके, टर्नओवर वाला क्राइटेरिया अपना आ गया, रेट्स बता दी इन्होंने, ऑल अमाउंट्स आर गिवन आर एक्सक्लूसिव ऑफ GST वेर एवर एप्लीकेबल, कोई बैलेंस नहीं है इसके अंदर बाकी GST का. एंड अज्यूम ऑल इनवर्ड सप्लाईज have been used for taxable outward supply. Company is not covered in the exception, right? 86B के exception में भी covered नहीं है regarding restriction of using the available ITC. Net minimum GST liability to be paid in cash after utilizing the ITC. Working notes form the part of your answer. तो एक बार आप देख लो कि कितना कितना आएगा इसमें, यहीं से देख लेते हैं अपन. ये देखो, अगर अपन शुरुआत से देखते हुए चलें तो ये मैं यहाँ वैल्यू लिख देता हूँ, यहाँ CGST लिख दिया, इधर ये SGST लिख दिया और यहाँ IGST लिख दिया. पहले में वैल्यू थी 5 लाख,
CGST आ गया था 45,000, SGST आ गया था 45,000 और IGST ये था नील। दूसरे में 12 लाख वैल्यू थी, इसमें IGST आया था अपना 216। तीसरे में 14 लाख वैल्यू थी और IGST आया था अपना 252। उसके बाद एक कॉरपोरेट गारंटी वाला अमाउंट भी याद रखना, कॉरपोरेट गारंटी वाला वैल्यू भी यहाँ इंपॉर्टेंट है, 2.5 लाख थी। और इसमें भी अपने आया था कॉरपोरेट गारंटी में IGST 18% की रेट से। कहाँ तक लिखा था ना भैया, 2.5 लाख का 18%, ये आ गया था 45,000 रुपये। ये 45,000, तो ये आ गई अपनी, ये आउटपुट टैक्स लायबिलिटी आ गई अंडर फॉरवर्ड चार्ज। ये आ गई आउटपुट टैक्स लायबिलिटी अंडर फॉरवर्ड चार्ज। 45,000, 45,000 और इधर कितना आ रहा है 216 प्लस 252 प्लस 45, 5 लाख और 13,000। सिंपल है क्वेश्चन। ITC की बात करो भाई, इसके लिए यूज़ करेंगे ना अपन, तो एक तो डेबिट नोट वाला ITC था, डेबिट नोट वाला था, उसमें ITC आ रहा था कितना, डेबिट नोट, ये आया था अपना 27, CGST 27, SGST 27, ठीक है। उसके बाद आया था हमारे पास नेक्स्ट क्या था, सिल्क यार्न 8 लाख, 8 लाख में लगा था IGST 144, सॉरी ये क्रेडिट मिल गया 144 का, ठीक है। उसके बाद देखो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल था 6 लाख का, और इसमें CGST था 54,000, ये भी 54,000, ठीक है। फिर आई थी हमारे पास बात 15 लाख का मिलेगा नहीं, 14 लाख का मिलेगा नहीं, 15 लाख का मिलेगा नहीं, 14 लाख का मिलेगा नहीं, इनका मिलेगा नहीं क्योंकि इसमें आ नहीं रही थी वैल्यू, ठीक है। तो जहाँ तक हमारे पास ITC की बात है, कितना हो जाएगा ये, 81,000 ये हो गया, 81 ये हो गया, और यहाँ हो गया कितना 144 ही हुआ, यहाँ तो 144। अब इसका यूटिलाइजेशन कर लेंगे हम। अब एक्स्ट्रा जो है देखो, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी आ रही है आपकी 45, तो CGST भाई CGST क्रेडिट किसके लिए काम में आ जाएगा, टू बी यूज्ड फॉर IGST। CGST क्रेडिट IGST के काम में आ जाएगा कितना, 81,000 माइनस 45,000, यानी 36,000 ही आ जाएगा। और SGST क्रेडिट भी यूज़ करने के लिए आ जाएगा काम में, टू बी यूज फॉर IGST 36,000। तो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी अंडर फॉरवर्ड चार्ज यहाँ आ गई नील, यहाँ आ गई नील, और यहाँ कितनी आ गई 5,13,000 माइनस 144 माइनस 36 माइनस 36, ये आ जाएगी 297। अब RCM की लायबिलिटी थी, एक तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की कितनी आ रही थी, RCM की लायबिलिटी 54 आ रही है, और एक सिल्क यार्न की आ रही है 144। GST to be deposited through e-cash ledger, GST to be paid थ्रू ई कैश लेजर 54,000, तो ये आ गया,
ये फाइनल आंसर आ रहा है, भाई इतना आपको अमाउंट जीएसटी पे करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के माध्यम से। 54,000 ये आ रहा है, 54,000, और 297 प्लस 144 प्लस 144 297 प्लस 144 4,41,000, 4,41,000, ये फाइनल आंसर आ जाएगा। पहला क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं था इस बार, इट वॉज सिंपल क्वेश्चन जिसमें 2 अमेंडमेंट आ गए थे। एक तो कॉर्पोरेट गारंटी वाला आ गया 28 रूल के अंदर जो था, और एक 10(1) CA वाला आ गया। तो दीज टू अमेंडमेंट्स और आज क्वेश्चन नंबर 1 बहुत सिंपल था। तो क्वेश्चन नंबर 1 अब हमारा क्या हो चुका है, यहाँ पे हमने डिस्कशन पूरा कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल सेम क्वेश्चन अपन ने भी दे रखा है, ये अपने कंपाइलर में एज इट इज दे रखा है। अपने कंपाइलर में ये क्वेश्चन एज इट इज दे रखा है। आपको अगर दिखाना है तो मैं कंपाइलर का एग्जाम्शन वाले चैप्टर को खोल के आपको बता सकता हूँ। ये क्वेश्चन अपन ने फाइनेंशियल सर्विसेज में अपन ने क्या है ऑलरेडी कवर किया हुआ था। फाइनेंशियल सर्विसेज में दिस हैज बीन से ऑलरेडी कवर्ड, ये बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, ये अपना कंपाइलर था। इसको ई बुक फॉर्म में इसलिए पब्लिश किया कि इजीली सर्चेबल है। अब देखो ये क्वेश्चन एज इट इज, ये देखिए, यही जो डिस्काउंट अर्न, ये इस तरह का क्वेश्चन ऑलरेडी एक बार आया हुआ था पास्ट सीए के क्वेश्चन के अंदर। तो ये डिस्काउंट अर्न, कमीशन ऑन डेट कलेक्शन, और ये देखिए सेल टू मर्चेंट, एक्सेप्टिंग क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सब चीज़ें एज इट इज़ आ रही है। दिस वॉज मोर और लेस सेम क्वेश्चन जो अपने ऑलरेडी कवर्ड था। और रेपो, रिवर्स रेपो, पीनल इंटरेस्ट, ये सब चीज़ें हमारे यहाँ पे ऑलरेडी आ रही है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। इट्स अ सिंपल वन, तब कोई डिफिकल्ट नहीं था। देखिए, डिस्काउंट अर्नड ऑन बिल्स डिस्काउंटेड, ये कह रहा है बैंकिंग कंपनी measures YVPAY Bank Limited is registered under GST law and provided the following services during the month of October. तो डिस्काउंट अर्नड ऑन बिल्स डिस्काउंटेड, आपको सिर्फ इतना बताना है कि भाई ये क्या चीज़ है, एग्जेम्प्ट है। ये तो एग्जेम्प्ट है, पढ़ा ही था अपन ने। इंटरेस्ट अर्नड ऑन रिवर्स रेपो ट्रांजेक्शंस, ये भी क्या है, एग्जेम्प्ट रहेगा। इंटरेस्ट अर्नड ऑन रिवर्स रेपो ट्रांजेक्शंस, द सेम इज ऑल्सो एग्जेम्प्ट। पीनल इंटरेस्ट के रिलेशन में भी सर्कुलर आ गया कि वो भी इंटरेस्ट की नेचर का ही है, वो भी क्या रहेगा, एग्जेम्प्ट रहेगा। ये भी क्या रहेगा, एग्जेम्प्ट रहेगा। उसके बाद कहता है सर्विसेज टू मर्चेंट एक्सेप्टिंग क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड पेमेंट्स फ्रॉम POS, 50% ऑफ द अमाउंट पर ट्रांजेक्शन वॉज अप टू ₹1,500, while other cases was the amount has been between say 1,500 to say 2,000। तो ये अप टू ₹2,000 अगर ये ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो भी क्या रहते हैं, एग्जेम्प्ट रहते हैं। तो ये लिखना पड़ेगा आपको, जो POS के ट्रांजेक्शन्स हैं अप टू ₹2,000, ये क्या रहेंगे, एग्जेम्प्ट रहेंगे। एग्जेम्प्ट सिंस सर्विसेज आर प्रोवाइडेड टू मर्चेंट्स इन रिलेशन टू क्या दिस ट्रांजेक्शन्स, जो कि क्या रहेंगी अप टू ₹2,000, ये क्या रहेंगे, एग्जेम्प्ट रहेंगे। ठीक है, ये एग्जेम्प्ट रहेंगे। फिर कमीशन फ्रॉम डेट कलेक्शन सर्विसेज, ये टैक्सेबल है। देख लो यार अपना, अगर आपको देखना है तो ये देख लीजिए, ये आ गया कमीशन रिसीव्ड फॉर डेट कलेक्शन सर्विसेज, ये अपन ने टैक्सेबल कर रखा था। डिस्काउंट अर्नड ऑन बिल डिस्काउंटेड एग्जेम्प्ट था। उसके अलावा चार्जेस फॉर क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड फैसिलिटी, अगर पीनल इंटरेस्ट, ये एग्जेम्प्ट कर रखा है। देखिए पीनल इंटरेस्ट क्या है, ये क्या कर रखा है अपन ने, एग्जेम्प्ट किया हुआ है। ठीक है, उसके अलावा इंटरेस्ट अर्नड ऑन रिवर्स रेपो ट्रांजेक्शंस, ठीक है, in reverse repo transactions are securities, they are not covered in goods as well as services and they will be not liable, ये taxable नहीं रहेंगी, ये भी exempt है। ठीक है, ये क्वेश्चन मोर और लेस क्या है, सेम था। अब आगे देखिए,
ये टैक्सेबल होगा, 12 लाख और 4 लाख टैक्सेबल हो जाएंगे। इस पे मान लीजिए रेट ऑफ जीएसटी क्या कह रहा है, 18% है, 18% रेट ऑफ जीएसटी है। इंक्लूसिव भी मान सकते हो, एक्सक्लूसिव भी मान सकते हो। ये लायबिलिटी आ जाएगी कितनी, 12 लाख का 18% होता है 2,16,000 रुपये, और यहाँ आ जाएगी 72,000। तो ये आ जाएगी अपनी 2,88,000। ये तो जीएसटी लायबिलिटी आई, ये आई जीएसटी लायबिलिटी। अब ये कह रहा है मेजर्स YVPAY बैंक लिमिटेड ऑप्टेड फॉर ऑप्शनल मेथड अंडर 17(4) for claiming ITC in respect of the operations. For the month of October, the relevant details were there. Input services का हो गया, capital goods का ये आ रहा है। Amount of GST paid on items whose credit is blocked इसका मिलेगा नहीं। अगर इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन होता तो वहाँ उसका 100% मिल जाता। अदरवाइज इनका क्या है, 14 लाख का कितना मिल जाएगा, सिर्फ 50% ही एलिजिबल ITC का मिलेगा आपको क्रेडिट, यानी 7 लाख रुपए क्रेडिट आपको मिल रहा है ITC 7 लाख का मिल रहा है। तो जीएसटी लायबिलिटी अंडर, यहाँ इस केस के अंदर क्या आ जाएगी, नील आ जाएगी। इस केस के अंदर क्या है, जीएसटी लायबिलिटी आपके क्या हो जाएगी, नील आ जाएगी। आंसर आपको लिखना है नील जीएसटी लायबिलिटी इस केस के अंदर आएगी। सिंपल क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड अर्लियर ऑल्सो। इस तरह क्वेश्चन आरटीपी में, कंपाइलर में हमारे ऑलरेडी कवर्ड हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये वाला इस बार का अमेंडमेंट था। ये तो अमेंडमेंट का बेस क्वेश्चन था जो आरटीपी में भी था, अपने शॉर्ट क्वेश्चंस में भी था। दैट इज व्हाट, विन हेयर 24/7 इज एन ऑनलाइन मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म ऑपरेटिंग फ्रॉम सिंगापुर। कहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं, सिंगापुर से। इट प्रोवाइड्स टू इट्स यूजर्स अ प्लेटफॉर्म टू प्ले एंड विन इन मनी इन डिफरेंट गेम्स दैट आर अवेलेबल ऑन वेब पोर्टल, ठीक है। In the month of October 23, Mr. Anil, player, an unregistered person located in India, deposited an amount 15,000 rupees inclusive of GST in the master wallet available on the portal. इसने क्या किया, 15,000 रुपये जमा किए। ये 15,000 जमा किए इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है, और जीएसटी की रेट ऑनलाइन गेमिंग पे 28% है, दे रखी होगी वैसे क्वेश्चन के अंदर, नहीं तो आपको ध्यान रखना है 28% है, ठीक है। 28% जीएसटी की रेट है। तो ये 15,000 रुपये इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है। तो इसमें जीएसटी का वैल्यू ऑफ सप्लाई कितनी हो गई, 100 डिवाइड बाई 128, ये वैल्यू ऑफ सप्लाई हो गई। कितनी आ गई वैल्यू ऑफ सप्लाई, 15,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 128, ये आ जाएगी 11,719 रुपये मान लीजिए, ठीक है। ये वैल्यू ऑफ सप्लाई आ गई जिस पे 28% जीएसटी लग गया, 3281, ये आ जाएगा जीएसटी, ये आ जाएगा वैल्यू जो जमा कराया, ये वैल्यू ऑफ सप्लाई में आ जाएगा। उसके बाद मिस्टर अनिल यूटिलाइज अमाउंट 2500, अनिल ने यूटिलाइज किया अमाउंट 2500 फ्रॉम मास्टर वॉलेट। अब इस पर थोड़ा अगर अलग से जीएसटी नहीं लगेगा। एंड एज विनिंग अमाउंट वॉज क्रेडिटेड टू हिज मास्टर वॉलेट। तो अब इसने क्या किया, ये जैसे एक तरह से 15,000 इसने जमा कराए थे, 3281 तो जीएसटी के निकल गए, और इसने क्या 2,500 रुपये उसमें से यूज़ कर लिए, इसमें से 2,500 रुपये इसने क्या यूज़ कर लिए, और इसको ने जीत लिए कितने, 11,000 रुपये जीत लिए, 11,000 जीत लिए। ऑन another portal operated by Mr. Measures Win here, in name of Win90, Mr. Anil plays a bet, फेस वैल्यू 12,000। अब फेस वैल्यू बता दी 12,000, इसने एक बेट प्लेस कर दी इसमें से 12,000 की, और इस पे लग जाएगा 28% जीएसटी। 12,000 पे फेस वैल्यू है तो 28% जीएसटी लग जाएगा। ये 3360, तो ये भी घट गए, ये भी घट गए। अब बिल्कुल सिंपल सी बात है, ये हार गया, इसमें कुछ भी नहीं मिला इसको। अब मास्टर बैलेंस अमाउंट फ्रॉम इस मास्टर वॉलेट टू इस बैंक अकाउंट, कितना अमाउंट इसको बैंक में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये पूछ रहे हैं कंप्यूट द टैक्सेबल वैल्यू अंडर जीएसटी। टैक्सेबल वैल्यू अंडर जीएसटी एक तो आ गई क्या,
719 और एक कितनी आ गई, एक आ गई 15,000, दोबारा बैठ किया ना, सॉरी 12,000, ये टैक्सेबल वैल्यू आ जाएगी। एक पूछ रहा है टोटल जीएसटी पेएबल, टोटल जीएसटी पेएबल कितना आ जाएगा, टोटल जीएसटी पेएबल आ जाएगा 3281, 3281 और 3360। तो टोटल जीएसटी पेएबल हो जाएगा कितना, प्लस 3360, 6641, ये हो जाएगा 6641। और कितना अमाउंट ट्रांसफ़र किया गया है इसको, तो कितना अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाएगा इसको, 15,000 इसने दिए थे, इसमें से 3281 जीएसटी के निकल गए, 2,500 का गेम खेल लिया, 11,000 जीत गया, फिर इसमें से 12,000 और लगा दिए इसने, और उसमें से जीएसटी और लग गया, तो ये अमाउंट इसको मिल जाएगा 4859, इसको रिफंड हो जाएगा, 4859 इसको क्या हो जाएगा, रिफंड हो जाएगा, 4859 इसको क्या है, रिफंड हो जाएगा। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन ऑलरेडी आरटीपी में आया हुआ है, अपने शॉर्ट क्वेश्चन में भी था और कवर किया हुआ है अपन। देन कैलकुलेट द असेसेबल वैल्यू, ये कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कस्टम्स का, राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट 1 रुपी। कैलकुलेट करिए असेसेबल वैल्यू राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 1 रुपी अंडर कस्टम्स एक्ट 1962 with the appropriate working notes forming the following particulars related to import of machine by sea। किससे import किया, सी से की है, by दक्ष इंडस्ट्रीज फ्रॉम यूएसए इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। तो ये import हुई है मशीन सी से। कॉस्ट ऑफ मशीन एट द पोर्ट ऑफ एक्सपोर्टेशन, इसकी कॉस्ट आ रही है $8200। फ्रेट फ्रॉम पोर्ट ऑफ एक्सपोर्ट टू इंपोर्ट ऑफ इंपोर्ट, ये एक्चुअल सी फ्रेट है, तो एक्चुअली जुड़ेगा, ये तो एक्चुअल सी फ्रेट है, यहाँ 20% वाला क्राइटेरिया नहीं लगेगा। दक्ष इंडस्ट्रीज हैज पेड टू सेलर कॉस्ट ऑफ पैकिंग नॉट एज अ कंडीशन ऑफ सेल बट इंक्लूडेड कॉस्ट ऑफ मशीन। तो अपन ने 10(1)(a) में देखा था, 10(1)(a) में कि अगर पैकिंग के चार्जेस हैं, कॉस्ट ऑफ पैकिंग वेदर फॉर लेबर और मटेरियल्स, वो इंक्लूडेड रहेगी, कंडीशन वंडीशन यहाँ नहीं है कुछ भी, ये कोई 10(1)(c) नहीं है, यहाँ पे दीज चार्जेस विल बी से इंक्लूडेड, इसका कोई फर्दर रिडक्शन मत कर देना आप, रिडक्शन मत करना इसका, ये एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। पैकिंग चार्जेस, सेलिंग कमीशन है, तो एक बार इसको कन्वर्ट कर लें, अगर अपन किसके अंदर, इंडियन रुपीज़ में कर लो कन्वर्ट, इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट कर लो, एक्सचेंज रेट दे रखी है 80, इसको कन्वर्ट किया 80 के हिसाब से, तो 8200 इंटू 80, ये आ जाएगा 6,56,000 रुपये। उसके बाद आप जोड़ो सेलिंग कमीशन, बाइंग कमीशन इंक्लूड नहीं होता, सेलिंग कमीशन तो इंक्लूड होगा ही होगा टू एन एजेंट, 20,000 ही जुड़ जाएगा। एक्चुअल इंश्योरेंस चार्जेस पेड आर नॉट असर्टेनेबल, ये हो जाएगा 1.125% ऑफ एडजस्टेड एफओबी या कस्टम्स एफओबी वैल्यू, जब असर्टेनेबल नहीं हो। शिप डेमरेज चार्जेस पेड बाय दक्ष इंडस्ट्रीज एट द पोर्ट ऑफ इंपोर्टेशन, तो डेमरेज चार्जेस ऑफ चार्टर्ड वेसल्स ये इंक्लूड होगा, ये इंक्लूड होगा इन कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये इंक्लूड होगा कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट के अंदर, ठीक है। इंजीनियरिंग चार्जेस पेड बाय दक्ष इंडस्ट्रीज टू कंसल्टेंसी फर्म ऑफ मुंबई एज कंडीशन ऑफ सेल, तो ये हो गई क्या, पोस्ट इंपोर्टेशन। और इंजीनियरिंग चार्जेस इंडिया में पे की जा रही है एज कंडीशन ऑफ सेल, सेम विल नॉट बी इंक्लूडेड, सेम विल नॉट बी इंक्लूडेड, ये इंक्लूड नहीं होगा, सेम विल नॉट बी इंक्लूडेड, ठीक है। रेट ऑफ एक्सचेंज है, लॉजिकल रीजनिंग मांग रहा है, तो ये आ गई कस्टम्स एफओबी वैल्यू,
कितना हो जाएगा 676, ये हो जाएगी 676। फिर सी फ्रेट जोड़ दो, एक्चुअल कितनी है 1800 इंटू 80, 1800 इंटू 80, 144 ये जुड़ जाएगी, और आपके क्या नाम से शिप डैमरेज भी जुड़ जाएंगे। शिप डैमरेज कितने हैं भैया 15,000, ठीक है। और इंश्योरेंस हो जाएगी 1.125% ऑफ 676, इंश्योरेंस हो जाएगी कितना हो गया 7605। बाकी हम सब जोड़ ही चुके, तो ये सिंपल सा था, तो ये आ गया अपना आंसर 676 प्लस 144 प्लस 15,000 प्लस 7605, कितना आ जाएगा ये 842,605, 842,605, ये आ जाएगा आपका अल्टीमेट आंसर 842,605, ठीक है। तो ये भी अपन ने क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3 का, ये 3 कर लेते हैं 3 तक, फिर उसके बाद देखते हैं। डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई अलॉन्ग विद दिस जस्टिफिकेशन फॉर द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। अब ये प्लेस ऑफ सप्लाई का इशू है। अब पहला देखिए, क्रिस्टल क्लियर वाटर लिमिटेड, क्रिस्टल क्लियर वाटर लिमिटेड ये क्या है, मैन्युफैक्चरर है मिनरल वाटर का, इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ मिनरल वाटर, रजिस्टर्ड अंडर GST in Mumbai, Maharashtra. So it's a registered person. CCWL enters into an agreement, into a contract basically, with a global advertising agency registered under GST in Ahmedabad, Gujarat. ये कहाँ पे रजिस्टर्ड है, GST में अहमदाबाद गुजरात में रजिस्टर्ड है, फॉर डिस्प्लेइंग इट एडवर्टीजमेंट ऑन होर्डिंग्स एट एन अवार्ड इवेंट ऑर्गेनाइज्ड एट द कन्वेंशन सेंटर गांधीनगर, गुजरात। कि भाई हमारे कोई इवेंट होगा तो आप क्या है, होर्डिंग्स क्या है, एडवर्टाइजमेंट करेंगे उन होर्डिंग्स पे। द स्ट्रक्चर ऑन विच होर्डिंग्स आर टू बी डिस्प्लेड इज टेकन ऑन रेंट बाय GAA फ्रॉम मिस्टर कपूर। कपूर ने ये स्ट्रक्चर रेंट पे दिए हैं, किसको, GAA को। कपूर अनरजिस्टर्ड पर्सन है दिल्ली के अंदर। डिटरमाइन प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर टैक्स इनवॉइस टू बी रेज्ड बाय GAA टू CCWL। अब फंडामेंटली GAA जो है ग्लोबल एडवर्टाइजिंग सर्विस कंपनी जो है एजेंसी, इज प्रोवाइडिंग, यहां तक क्वेश्चन, GAA ने क्या सर्विस दी है, एडवर्टाइजिंग सर्विस टू CCWL। इसकी जो प्लेस ऑफ सप्लाई होगी 12 के अनुसार डिटरमाइन होगी, 12(2) के अनुसार डिटरमाइन हो जाएगी। लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट इसकी प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगी, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट इसकी क्या हो जाएगी, प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगी। कहाँ पे है लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, यहाँ पे है मुंबई, महाराष्ट्र। ये एडवर्टाइजिंग सर्विस की बात कर रहा है, मुंबई महाराष्ट्र। इसमें आप ये इमोरल प्रॉपर्टी वाला कंसेप्ट तो कपूर ने जो दिया है GAO को, उसकी बात पे आएगा। तो कई बच्चों ने एडवर्टाइजिंग वाला जो अभी सर्कुलर पढ़ा उसके हिसाब से आंसर दे दिया होगा कि भाई ये तो अपने इमोरल प्रॉपर्टी वाला है हिसाब, उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई निकाल दी होगी। पर यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई एडवर्टाइजिंग सर्विसेज की है जो GAA प्रोवाइड कर रहा है, किसको, CCL को। इसलिए यहाँ लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट बेसिकली विल बिकम द प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ विल बी व्हाट, टू अ रजिस्टर्ड पर्सन इज लोकेशन ऑफ सच पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिस्टर सुनील, ये रजिस्टर्ड पर्सन अंडर GST, सुनील रजिस्टर्ड पर्सन है अंडर GST, इज रेजिडेंट ऑफ दिल्ली, सॉरी अनरजिस्टर्ड पर्सन है of under GST, is resident of Delhi and currently posted in देहरादून, उत्तराखंड। कहाँ पे पोस्टेड है, देहरादून उत्तराखंड पे। He went on official visit to अरुणाचल प्रदेश and he purchased leather bag, उसने एक लेदर बैग खरीदा 15/10/23 को फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश
and shopkeeper measures ABC issued a tax invoice in name of Sunil only. सुनील के नाम में इनवॉइस जारी की गई है. सुनील रिटर्न बैक टू देहरादून along with लेदर बैग. खरीद के आ गए भाई साहब लेदर बैग. डिटरमाइन प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ फॉर द टैक्स इनवॉइस. अब यहाँ पे सिंस द एड्रेस ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन, जो भी स्टेट की बात कर रहे हैं, इज नॉट रिकॉर्डेड इन इनवॉइस. 10(7)(c) पढ़ा था इस बार, अमेंडमेंट था. तो ये इनवॉइस में इसका रिकॉर्डेड नहीं है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी इस केस में? इस केस के अंदर प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगी लोकेशन ऑफ सप्लायर. लोकेशन ऑफ सप्लायर कहाँ है? सप्लायर कहाँ का है भैया? सप्लायर है अरुणाचल प्रदेश का. अरुणाचल प्रदेश का. अरुणाचल प्रदेश इस केस के अंदर क्या बन जाएगी? प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगी. ये अमेंडमेंट था, वो उधर भी अमेंडमेंट था, ये भी था. फिर वापस से पिन 2, जो अनरजिस्टर्ड पर्सन एंड जीएसटी रेजिडेंट ऑफ करनाल हरियाणा वेंट टू विजिट शिमला हिमाचल प्रदेश along with his family during holidays in the month of October. Due to some medical emergency, he purchased some medicines from a medical store at Mall Road, Shimla, and tax invoice was issued in name of Pinto, mentioning the address as Karnal, Haryana. अब इसका एड्रेस मेंशनड है यहाँ पे, तो एड्रेस इज रिकॉर्डेड है. यहाँ एड्रेस क्या हो चुका है? रिकॉर्ड हो चुका है. तो एड्रेस इज रिकॉर्डेड, जिसमें स्टेट रिकॉर्ड हो चुका इन द इनवॉइस. ठीक है. तो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी? ये भले इसे कंज्यूम कहीं भी हो गई हो, यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी? करनाल हरियाणा. यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी? करनाल हरियाणा बिकम्स दी प्लेस ऑफ सप्लाई. तो ये दो, ये वाला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, दोनों ये 10(1)(ca) से रिलेटेड ही पूछ लिया इसने. तो जिसने 10(1)(ca) छोड़ दिया उधर भी नंबर कट गए. ये दो क्वेश्चनों के जितने भी नंबर थे वो भी कट गए. तो ध्यान रखिएगा, अमेंडमेंट बेस्ड था, अमेंडमेंट आपको अच्छे से आने चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. मिस्टर शर्मा इज डायरेक्टर ऑफ वी लिमिटेड, प्रोवाइड्स पर्सनल गारंटी. ये पर्सनल गारंटी ऑन 31/10/23 टू नेशनलाइज बैंक फॉर सैंक्शनिंग कैश क्रेडिट्स ऑफ 100 lakhs sanctioned in favor of V. Mr. Sharma was not paid any consideration by V Limited. अब ये कॉर्पोरेट गारंटी नहीं है, इसके लिए भी सर्कुलर आया हुआ है. कॉर्पोरेट गारंटी नहीं है, इट्स नॉट अ कॉर्पोरेट गारंटी जहाँ 28 आप अप्लाई कर दो. ये क्या है? पर्सनल गारंटी है. अब सबसे पहले तो जो डायरेक्टर है इसने क्या की है? कंपनी को सर्विसेज दी है. ये रिलेटेड हो गए, ये रिलेटेड पर्सन हो गए. अब ये कह रहा है कि क्या ये ट्रांजैक्शन सप्लाई की एम्बिट में आएगा क्या, और कोई कंसिडरेशन चार्ज नहीं किया गया, इवन विदाउट कंसिडरेशन. अपन ने सर्कुलर पढ़ा था, सेम इज कवर्ड इन एम्बिट ऑफ सप्लाई. ये सर्कुलर अपन ने ऑलरेडी पढ़ा था. देखो, ये अपन ने ऑलरेडी डिस्कस किया था. अगर दिखाना है तो दिखा दूं मैं आपको. ये वैल्यूएशन में था, और वैल्यूएशन में रूल 28 के अंदर ही नीचे ये सर्कुलर था. ये देखो, ये आ गया. वेदर एक्टिविटी ऑफ प्रोवाइडिंग पर्सनल गारंटी बाय डायरेक्टर ऑफ कंपनी टू बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फॉर सैंक्शनिंग क्रेडिट लिमिट्स ऑफ साइड कंपनी विदाउट कंसिडरेशन विल बी ट्रीटेड सप्लाई. पर्सनल गारंटी प्रोवाइडेड बाय डायरेक्टर इज कवर्ड अंडर द एम्बिट ऑफ सप्लाई. क्वेश्चन वही है, क्या ये सप्लाई है? क्या बिल्कुल सप्लाई है. इफ यस, व्हाट इज द वैल्यू? अब इसमें अपन ने ये फर्दर डिस्कस किया था कि आरबीआई ये कहता है कि इस केस के अंदर नो कंसिडरेशन कैन बी चार्ज्ड. नो कंसिडरेशन कैन बी चार्ज. वैल्यू होती है ओपन मार्केट वैल्यू. ओपन मार्केट वैल्यू इस केस के अंदर क्या हो जाएगी? नील हो जाएगी. क्यों हो जाएगी नील? क्योंकि आरबीआई ने ये बोल रखा है कि इस तरह के ट्रांजैक्शन में कोई कंसिडरेशन चार्ज नहीं किया जा सकता है. तो जब ओपन मार्केट वैल्यू नील हो गई तो वैल्यू ऑफ सप्लाई भी क्या हो जाएगी? नील हो जाएगी. तो ये 5 नंबर का पूरा एज इट इज, ये जो अभी लेटेस्ट अपना 27/10/2023 का सर्कुलर था, उस पर एज इट इज ये क्वेश्चन आया हुआ है. बिल्कुल सेम चीज़, और पूरी यही रीजनिंग के साथ यहाँ पे क्या हो जाएगी? टैक्सेबिलिटी नील हो जाएगी, वैल्यू नील हो जाएगी.
वैल्यू नील हो जाएगी, सप्लाई तो है पर ओपन मार्केट वैल्यू नील मानी जाएगी और ये भी नील माना जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, GHN लिमिटेड हैड इंपोर्टेड सर्टेन आइटम्स ऑन 14th October 23। 14th October 23 को इन्होंने कोई आइटम्स इंपोर्ट किए हैं, तो यहाँ पे टैक्सेबल इवेंट कब हो गया? टैक्सेबल इवेंट कब हुआ? व्हेन बिल ऑफ एंट्री इज फाइल्ड एंड गुड्स मिक्सेस विद लैंडमास ऑफ इंडिया। लैंडमास ऑफ इंडिया, जब बिल ऑफ एंट्री आपने फाइल करी एंड गुड्स मिक्सेस विद दी लैंडमास ऑफ इंडिया, तो ये 14 अक्टूबर को ये आपने बिल ऑफ एंट्री मतलब इंपोर्ट हो गया, टैक्सेबल इवेंट 14 अक्टूबर को हुआ। अकॉर्डिंग टू GNH लिमिटेड आइटम्स शुड बी क्लासिफाइड अंडर हेडिंग, ये हेडिंग बता दिया, चैप्टर हेडिंग ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट टैरिफ शेड्यूल, वेयर द डिपार्टमेंट इज ऑफ द व्यू दैट आइटम शुड बी क्लासिफाइड अंडर डिफरेंट टैरिफ हेडिंग। डिस्प्यूट इनके बीच में चल रहा है। मीनवाइल एन एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन इशूड ऑन 26 अक्टूबर, 14 अक्टूबर को इंपोर्ट हो चुका है, 26 अक्टूबर को एक एग्जेम्पशन आया विच एग्जेम्प्टेड डिस्प्यूटेड गुड्स बाय क्लासिफाइंग इट अंडर हेडिंग, इस हेडिंग के अंदर उसको क्लासिफाई करके इसको एग्जेम्प्ट कर दिया उन्होंने फॉर द फ्यूचर इंपोर्ट्स फ्रॉम 30 अक्टूबर, 30 अक्टूबर ऑनवर्ड्स अगर आप इंपोर्ट करते हो। तो अब देख बेसिकली क्या होता है, ये एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन है। एग्जेम्पशन नोटिफिकेशंस जो होते हैं आर टू बी कंस्ट्रूड स्ट्रिक्टली, यानी अब ये प्रोस्पेक्टिव इन नेचर रहते हैं नॉर्मली। जब एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन आ रहा है तो ये क्या है, ये एग्जेम्पशन प्रभावी होगा, कब से होगा? जिस दिन से ये बताया गया है। नाउ GNHN लिमिटेड हैज क्लेम्ड दैट सिंस डिपार्टमेंट एग्जेम्प्टेड अ प्रोडक्ट अंडर दिस पर्टिकुलर चैप्टर 12, जो भी है ये चैप्टर AB heading, its items are to be classified under the same heading even though it imported goods earlier. अब discuss with the help of decided case law if any whether contention of GHN is correct। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये रूलिंग दी हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी हुई है कि अगर कोई इसमें इस पर्टिकुलर केस के अंदर ही कोई एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन जारी हुआ है, वेरियस कोर्ट रूलिंग्स है, और इसका सेम कैन बी गिवन retrospective effect also, retrospective effect also, इस तरह की ये कोर्ट की रूलिंग्स क्या है आई हुई है। तो फंडामेंटली ये कह रहे हैं दोनों व्यूज इसमें आपकी चल सकती है। अपन ये व्यू लेके भी कह सकते हैं कि भैया ये एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन है, इसका प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा आगे आने वाले इंपोर्ट्स पे, आगे आने वाले जो इंपोर्ट्स हैं उस पर ही ये एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन का ये पर्टिकुलर टैरिफ हेडिंग क्या है अप्लाई होगा, प्रायर पे नहीं होगा। दूसरा ये है कि आपकी जो रूलिंग्स के हिसाब से आप बोल सकते हो कि एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन क्लासिफाई द प्रोडक्ट अंडर से पर्टिकुलर चैप्टर हेडिंग, तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे द सेड एग्जेम्पशन और क्लासिफिकेशन बेसिकली कैन बी एक्सेप्टेड फॉर अर्लियर पीरियड ऑल्सो, may have a retrospective effect if it is beneficial to the assessee, if it is beneficial to the importer. In case it is beneficial to the importer, he can also go for the same. तो दोनों व्यूज के हिसाब से यहाँ पे क्या आने चाहिए, नंबर आने चाहिए, पर आपको क्लैरिटी इसमें क्लियरली आपको इसको क्लैरिफाई करना पड़ेगा। तो ये अभी अपन ने क्वेश्चन पढ़ा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, लेट अस सी द फोर्थ वन। रजवाड़ा ऑपरेटर्स लिमिटेड ROL लिमिटेड, ये रजिस्टर्ड है अंडर GST इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका एज एन ई-कॉमर्स ऑपरेटर। कैसे ई-कॉमर्स ऑपरेटर जैसे रजिस्टर्ड है? इट ओन्स एंड ऑपरेट्स अ वेब पोर्टल, इट ओन्स एंड ऑपरेट्स अ वेब पोर्टल which supplies various goods and services on behalf of various sellers and service providers to its ultimate customers। ठीक है, ये रजवाड़ा ऑपरेटर्स लिमिटेड है जो कि रजिस्टर्ड है GST इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका, और ये क्या है, इट ओन्स एंड ऑपरेट्स अ वेब पोर्टल जो कि सप्लाई कर रहा है ई-कॉमर्स पार्टिसिपेंट्स के वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज।
डिटेल्स ऑफ सप्लाईज अंडरटेकन थ्रू ROL इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, ये दे रखी है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है ऑल फिगर्स आर एक्सक्लूसिव ऑफ GST एक्सेप्ट वेयरएवर स्पेसिफाइड CGST SGST की रेट्स बोल रखी है। ये बोल रहा है क्या आप अमाउंट निकालिए TCS का, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स का, टू बी कलेक्टेड बाय ROL फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। यानी ये आप TCS का अमाउंट निकालिए यहाँ पे। तो अब देखो पहला क्या है, सेल ऑफ गुड्स वर्थ 1,47,500, 1,47,500 इंक्लूसिव ऑफ GST है। तो पहले इसकी सेल वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई निकालिए जिसपे TCS कलेक्ट हो सकता है। रेट 18% बोली थी, तो 1,47,500 डिवाइडेड बाय 118 इंटू 100, ये आ गई 1,25,000 रुपये। जो सेल्स इसने इफेक्ट किए 1,25 की करी है, ठीक है। रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ राजस्थान टू B लिमिटेड, A लिमिटेड ने B लिमिटेड को माल बेचा इसके ऑपरेटर के माध्यम से। ऑल्सो गुड्स वर्थ टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू 1,40,000 सोल्ड बाय A लिमिटेड टू B लिमिटेड इन गुजरात इन द मंथ ऑफ सितंबर वर रिटर्न बैक इन द अक्टूबर। तो जिस भी महीने में रिटर्न हुआ है, नेट ऑफ रिटर्न निकालते हैं, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई फॉर पर्पस ऑफ टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, और लेस रिटर्न्स। कितना रिटर्न हो गया? 1,40,000 का रिटर्न हो गया। तो अब यहाँ पे एक तरह से नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑन विच टैक्स टू बी कलेक्टेड एट सोर्स एक तरह से नील हो गई। TCS का अमाउंट भी इस केस में क्या हो जाएगा? नील हो जाएगा। सिंस नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई क्या हो गई? नील हो गई, इसलिए TCS भी क्या हो जाएगा? इस केस में नील हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैल्यू ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड फ्रॉम 21/10/23 to 30/10/23 by way of transportation of passengers by motor vehicles by X Limited registered in Karnataka to Z Limited registered in Karnataka amounting 550. It includes 1,50,000 against ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ओमनिबस। ये भी अमेंडमेंट है इस बार का। अब अगर कंपनी है, अगर कंपनी है और वो ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज दे रही है, एक तो है ओमनिबस की और एक है अदर मोटर व्हीकल्स। इधर कर देता हूं, कंपनी है और वो क्या दे रही है? ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज दे रही है ऑफ पैसेंजर्स। एक तो ओमनी बस के माध्यम से पढ़ाया था अपन ने, और एक अदर व्हीकल्स के माध्यम से। तो या तो ओमनी बस के माध्यम से दे रही है तो कंपनी विल बी लायबल टू पे GST। ठीक है, कंपनी GST पे करने के लिए लायबल है। और अदर व्हीकल्स है, यहाँ पे ई कॉमर्स ऑपरेटर, ये 9(5) की नोटिफाइड सर्विस हो गई। ई कॉमर्स ऑपरेटर विल बी लायबल टू पे GST। अब ई कॉमर्स ऑपरेटर जब लायबल हो गया GST पे करने के लिए, तो यहाँ पे नो TCS बाय ECO। यहाँ पे क्या हो जाएगा? टैक्स विल बी कलेक्टेड एट सोर्स बाय ECO। तो ये तो TCS का अमाउंट निकालने के लिए पूछ रहे हैं अपने से। तो अब आप देखो, ये 5,50,000 में से 1,50,000 रुपए की जो सर्विसेज है, इस पे TCS होगा। 1,50 की सर्विसेज पे क्या हो जाएगा? TCS होगा, क्योंकि ये कंपनी प्रोवाइड कर रही है और ये कंपनी है रजिस्टर्ड इन कर्नाटका और जेड लिमिटेड भी कर्नाटका है। तो 0.5% तो CGST का एलिमेंट की रेट TCS किया जाएगा और 0.5% SGST TCS होगा। इस पे TCS होगा 1.5 लाख पे, उस पे मत कर देना TCS। उसमें तो ई कॉमर्स ऑपरेटर खुद ही लायबल है टैक्स पढ़ने के पे करने के लिए, वहाँ TCS की कोई लायबिलिटी अराइज नहीं होगी। जहाँ कंपनी लायबल है वहाँ क्या हो जाएगा? TCS की रिक्वायरमेंट आएगी। तो ये
कंफ्यूजन मत तो करना इसका क्रिएट, ये जो आ गया इसका 750 रुपये CGST और 750 रुपये SGST। ये इंपॉर्टेंट है भैया, दिस वॉज द इम्पॉर्टेंट वन। जिसने अमेंडमेंट को सही से अपने क्लास में पढ़ा था, समझा था, वो कर सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मिस जरा ऑफ मुंबई, मिस जारा ऑफ मुंबई बुक्स क्या a room for 3 days and 2 nights in Rajvilas Palace, जोधपुर राजस्थान थ्रू महाराजा Resorts Limited MRL, an e-commerce operator registered under GST in कर्नाटका। ये कौन है? जारा ने इनके माध्यम से बुकिंग कराई है। MRL इज इंटीग्रेटेड विद ROL, ये ROL के साथ इंटीग्रेटेड है, विच हैज एन एग्रीमेंट विद राजनिवास पैलेस। अब ROL का एग्रीमेंट है, ROL देगा ये पैसा किसको? राजनिवास पैलेस को। ठीक है, राजनिवास पैलेस इज रजिस्टर्ड अंडर GST इन राजस्थान। ये कहाँ पे रजिस्टर्ड है? राजस्थान में। और इसने रेस किए इनवॉइस 1,50,000 टू मिस जारा, 1,50,000 रुपये की इनवॉइस रेस की जारा को, एंड रिसीव्स 1,45,000, 1,45,000 उसको क्या मिला है? ROL से मिला है फॉर द सेम। तो यहाँ पे बेसिकली अपन ने एक सर्कुलर देखा था कि बायर साइड ECO भी है, सप्लायर साइड ECO भी है। तो यहाँ पे जो अल्टीमेट पेमेंट कर रहा है वो कौन कर रहा है? सप्लायर साइड ECO पेमेंट कर रहा है, सप्लायर साइड ECO पेमेंट कर रहा है, विल बी लायबल, जो सप्लायर को पेमेंट कर रहा है, टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स, टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स। ठीक है, TCS करेगा। ठीक है, अब 1,50,000 रुपये की नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई है, इसका 0.5% की रेट से CGST का एलिमेंट होगा और 0.5% की रेट से SGST का एलिमेंट होगा, क्योंकि ये प्लेस ऑफ सप्लाई राजस्थान ही होगी, वेयर इमोल प्रॉपर्टी इज लोकेटेड। तो ये आ जाएगा CGST और SGST कितनी आ जाएगी? 750 ईच। Whatever net value of taxable supplies have been effected through ECO. तो supplier side ECO is required to say collect tax at source. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी अपन ने शॉर्ट क्वेश्चंस में दिया था। भगवान मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स कंपनी इज रजिस्टर्ड अंडर GST इन द स्टेट ऑफ राजस्थान, सप्लाइज वेरियस गुड्स इन डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट्स। It is engaged in both manufacturing and trading of goods. ठीक है, and it export goods without payment of tax under bond or LUT in accordance with section 16(3). BEMC provide the following information. अब ये कह रहा है टैक्सेबल वैल्यू ऑफ गुड्स स्टार सप्लाइड विद इन इंडिया 14 लाख हो गई। टैक्सेबल वैल्यू ऑफ गुड्स सन एक्सपोर्टेड विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर LUT, ये 10 लाख। ये अपने शॉर्ट में पूछा था इस बार। हाउएवर द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सच गुड्स वेयर व्हेन सप्लाइड डोमेस्टिकली बाय BMEC इन सिमिलर क्वांटिटीज क्या है? 6 लाख है। तो ये मैंने आपको समझाया था कि भाई आपको कौन सी वैल्यू लेनी है, FOB वैल्यू ये है या 1.5 टाइम्स ऑफ द डोमेस्टिकली सप्लाइड गुड्स विच इज लेस, तो 10 लाख या 9 लाख। ये एक्सपोर्ट टर्नओवर का पार्ट करेगा, यानी ये 9 लाख रुपए एक्सपोर्ट टर्नओवर का। दूसरा है टैक्सेबल वैल्यू ऑफ गुड्स मून एक्सपोर्टेड विदाउट पेमेंट टू 2 lakhs अंडर बॉन्ड। हाउएवर टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सच गुड्स व्हेन सप्लाइड डोमेस्टिकली टू इन सिमिलर क्वांटिटीज इज 150। 1,50,000 का 1.5 टाइम्स क्या हो गया? 1,50,000 का 1.5 टाइम्स हो गया 2,25 और 2 लाख, जो भी दोनों में से कम है, तो ये 2 लाख हो गया। तो कितना हो गया है? ये 9 लाख और 2 लाख 11 लाख हो गया। ये हो गया आपका एक्सपोर्ट टर्नओवर, एडजस्टेड एक्सपोर्ट टर्नओवर।
टोटल टर्नओवर कितना हो गया? टोटल टर्नओवर आ गया आपका कितना? 11 और 14 25 लाख रुपए। 25 लाख रुपए टोटल टर्नओवर आ गया। आईटीसी जितना अवेल हुआ है कैपिटल गुड्स, इसका कोई रिफंड नहीं मिलता है। अवेल्ड ऑन इनपुट्स का मिलेगा एंड इनपुट सर्विसेज का मिलेगा। आईटीसी कितना हो गया? 4.5 लाख रुपए हो गया। ठीक है, और ऑल दी अबव अमाउंट्स आर दिस। फिर अपने को ये बैलेंस देखना है एट द टाइम ऑफ मेकिंग रिफंड एप्लीकेशन। एक तो मैक्सिमम रिफंड आ जाएगा ऊपर वाले फॉर्मूले से, और एक वॉट एवर बैलेंस एट द टाइम ऑफ रिफंड एप्लीकेशन जब लगा रहे हैं वो बैलेंस वो क्या था, और जिस टैक्स पीरियड का रिफंड क्लेम कर रहे हैं उसके एंड में क्या आपके पास बैलेंस था। तीनों में से लोअर का आपको रिफंड मिल जाएगा। तो ऊपर वाले अमाउंट का देखो कितना आ रहा है, 450 इंटू कितना आ गया ये 25 लाख डिवाइड बाय 25 लाख इंटू 11 लाख। 11 है क्या एडजस्टेड? हाँ 11 है। फॉर्मूले में फिट कर लो उसको। 4.5 लाख तो नेट आईटीसी हो गया, दैट इज अवेल्ड ऑन इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज डिवाइड बाय 25 इंटू 11। ये अमाउंट आ जाएगा, एक तो 198 आ जाएगा, एक आपका जो बैलेंस आ रहा है 1.5 लाख रुपए, और एक आ रहा है आपका जब एट द टाइम ऑफ रेलेवेंट टैक्स पीरियड, एंड ऑफ टैक्स पीरियड लीस्ट 325। लीस्ट मिलेगा आपको रिफंड। कितना रिफंड मिल जाएगा? लीस्ट 1,50,000 रुपये का रिफंड मिलेगा। सिंपल क्वेश्चन था, एज इट इज क्वेश्चन हमने शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी अपन ने इस बार शॉर्ट में बैगेज में ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस वाला क्वेश्चन पूछा था, वही चीज आ गई है। वरुण गोयल इज एन IT प्रोफेशनल and a person of Indian origin is residing in USA for last 14 months। लास्ट 14 मंथ से वो कहाँ पे रिजाइड कर रहा है? यूएसए में रिजाइड कर रहा है, यानी 1 साल से ज़्यादा भारत के बाहर का स्टे है। ही विशेज टू यूज माइक्रोवेव ओवन अप्रॉक्सीमेटली 185,500 वेइंग 15 kg विद हिम ड्यूरिंग हिज परमानेंट रिटर्न टू इंडिया। परमानेंट रिटर्न कर रहा है, ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस है। पीरियड ऑफ स्टे किससे ज़्यादा है? 1 साल से 2 साल के बीच का पीरियड आ रहा है। तो अपन ने देखा 2 लाख रुपए तक के आर्टिकल्स वो लेके आ सकता है, जो कि एनेक्सोर 1 और 2 में मेंशन नहीं हो, एनेक्सोर 3 में मेंशन हो। 2 लाख रुपए तक के आर्टिकल लेके आ सकता है ड्यूटी फ्री, जिसमें माइक्रोवेव ओवन भी आ रहा है। माइक्रोवेव ओवन भी आ रहा है, ठीक है, इसमें माइक्रोवेव ओवन भी आ रहा है। तो ये 3 लाख रुपए तक के आर्टिकल्स क्या है? लेके आ सकता है ड्यूटी फ्री, ठीक है। Provided he has not availed this concession in preceding 3 years। 3 preceding years उसने ये concession avail नहीं किया। तो analyze and summarize the legal provisions of baggage rules and provide him some advice in this regard। Relevant legal provisions will form the part of your answer। तो पूरा आपको ये ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस के बारे में बताना है। 1 साल से 2 साल के बीच में 2 लाख रुपए तक के आर्टिकल लेके आ सकता है। 185,500 है तो नो ड्यूटी वुड बी पेएबल है। यहाँ पे कोई ड्यूटी आपके पेएबल नहीं होगी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 का। इन एन ऑर्डर पास्ट डेटेड 1 अप्रैल 23 इशूड टू सीताराम प्राइवेट लिमिटेड द कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स बीइंग रिविजनरी अथॉरिटी ने कंफर्म किए IGST डिमांड 1400 करोड़ की, पेनल्टी 200 करोड़ की और इंटरेस्ट 20 करोड़ की। सीताराम लिमिटेड एडमिट्स द टैक्स लायबिलिटी, इंटरेस्ट एंड पेनल्टी टू द एक्सटेंट ऑफ 220 और 10 करोड़। यानी 200 करोड़ तो ये एडमिट कर लिया इसने, 20 करोड़ ये एडमिट कर लिया और 10 करोड़ ये एडमिट कर लिया। ये तो एडमिट कर लिया, यानी 230 करोड़ तो ये ऑलरेडी एडमिट कर चुका, ठीक है। और बट विशेस टू लिटिगेट द बैलेंस अमाउंट ऑफ डिमांड। तो अब ये IGST एक्ट में चल रहा है मामला और ये अपील फाइल करना चाह रहा है GST 80 में। तो GST 80 में ये अपील फाइल करना चाह रहा है, तो इसको कितना प्री डिपॉजिट करना पड़ेगा? 20% ऑफ टैक्स इन डिस्प्यूट करना है भैया। इंटरेस्ट और पेनल्टी नहीं होती, ध्यान रखिएगा, ये गड़बड़ मत कर देना, इंटरेस्ट पेनल्टी नहीं जुड़ती है। तो 20% ऑफ टैक्स इन डिस्प्यूट, 20% ऑफ टैक्स इन डिस्प्यूट यानी टैक्स इन डिस्प्यूट अब 1200 करोड़ रह गया, यानी 240 करोड़, पर सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ क्या?
सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 100 करोड़, 50 करोड़ CGST, 50 करोड़ SGST या 100 करोड़ IGST। तो प्री डिपॉजिट कितना पूछो कितना पैसा इसका टोटल जमा कराना पड़ेगा, ये तो खुद ने एडमिट कर लिया तो कराना ही पड़ेगा, और 100 करोड़ और कराना पड़ेगा। फिर ये कह रहे हैं ये इसने अमाउंट रिक्वायर्ड 12 अप्रैल को जमा करा दिया, ये जमा करा दिया। GST डिसाइड द अपील इन फेवर ऑन 12 जून, 12 जून को फेवर में डिसाइड कर दिया। सीताराम सबमिट द एप्लीकेशन सीकिंग रिफंड of the pre-deposit along with the applicable interest on 2 जुलाई 23, and department acknowledges the application on the same day. The amount of pre-deposit is refunded on 15 अक्टूबर 23। तो कुल मिला के ये कह रहे हैं कि कंप्यूट द अमाउंट ऑफ प्री डिपॉजिट, हमने वो निकाल ही दिया। प्री डिपॉजिट कितना रहेगा, कितना डिपॉजिट कराना पड़ेगा, 230 तो एडमिटेड टैक्स है और 100 करोड़ और जमा कराना है। एंड इंटरेस्ट पेएबल बाय द डिपार्टमेंट ऑन रिफंड, रिफंड होएगा 100 करोड़ का। एपीलेट ट्रिब्यूनल की प्रोसीडिंग्स में रिफंड हुआ है, 9% की रेट से इंटरेस्ट मिलेगा आपको। जब से आपने प्री डिपॉजिट कराया तब से लेके जब तक ये रिफंड आपको नहीं दिया जाता है, ठीक है। प्री डिपॉजिट आपने करा दिया है 12 अप्रैल को। तो देखो दिन कितने हो गए, 30 में से 12 घटा दो, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, अक्टूबर के हो गए 15 दिन। अब अगर ये लीप ईयर वाली बात कहते हैं या नहीं कहते, उस हिसाब से आप क्या है इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेना। तो 18, 31, 30, 31, 31, 30, 15, 186 डेज का आपको क्या मिल जाएगा, इंटरेस्ट मिल जाएगा। डिवाइड बाय 365 करोड़ या 366 करोड़, ये देख लेना, ठीक है। फिर ये अपन ने शॉर्ट में पूछा था, GST डिपार्टमेंट इनिशिएटेड प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स ऑफ मिस्टर साहिल अ टैक्सेबल पर अंडर GST। मिस्टर साहिल हैज कलेक्टेड 8 करोड़ एज GST बट फेल टू पे द सेम। यानी यहाँ 8 करोड़ कलेक्ट किया है, सेम एक्सीड्स 5 करोड़ रुपए। तो अभी नए रूल्स के हिसाब से जो कंपाउंडिंग अमाउंट है उसकी रेंज हो जाएगी 75% टू, ये तो मैक्सिमम हो जाएगा ऑफ टैक्स इवेडेड, मिनिमम हो जाएगा 50% ऑफ टैक्स इवेडेड, ठीक है। तो अब देखो ये 75% ऑफ टैक्स इवेडेड एंड 50% ऑफ टैक्स इवेडेड, 4 करोड़ से लेके कंपाउंडिंग अमाउंट डिसाइड हो सकता है कितने तक, 6 करोड़ के बीच में। इन्होंने कितना लगा दिया, 5.2 करोड़ लगा दिया। तो क्या ये पूछ रहे हैं क्या डिटरमाइन द मिनिमम एंड मैक्सिमम, ये अपन ने कर ही लिया। क्या ये विद इन प्रिस्क्राइब्ड लिमिट है, बिल्कुल है। इज व्हाट इज द टाइम पीरियड विल हैव टू पे द कंपाउंडिंग अमाउंट, ये हो जाएगा 30 डेज के अंदर पे करना, विद इन 30 डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ द ऑर्डर। 30 दिन के अंदर ये अमाउंट क्या है आपको पे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिस्टर पंड्या इंपोर्टेड certain raw materials from Japan. However, Pandya was not able to furnish certain supporting documents related to the said raw material along with the bill of entry for home consumption. And Mr. Pandya requested custom officers to deposit the imported goods in public bonded warehouse for a period of 20 days so he can obtain required documents. The custom officer initially denied for the allowing warehousing and afterwards insisted Pandya to execute indemnity bond for the goods to be deposited in warehouse. अब यहाँ पे देखिए बेसिकली क्या है, ये सेक्शन 49 से डील कर रहा है। ये बेसिकली केस क्या हो गया, वेयर हाउसिंग हो गया विदाउट वेयर हाउसिंग। यहाँ पे आपको वेयर हाउसिंग के प्रोविजंस फॉलो करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे गुड्स कैन बी डिपॉजिटेड इन अ पब्लिक वेयर हाउस। पब्लिक वेयर हाउस के अंदर ये गुड्स क्या है, जमा कराए जा सकते हैं, ठीक है, फॉर अ पीरियड ऑफ 30 डेज।
तो वेयर हाउसिंग के प्रोविजंस अप्लाई नहीं हो रहे, तो बॉन्ड विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू बी एग्जीक्यूटेड। इसमें बॉन्ड विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू बी एग्जीक्यूटेड। सो बेसिकली ये जो था थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही था जो अभी 49 से डील कर रहा था कि वेदर एसी और डीसी बेसिकली सेटिस्फाइड दैट इंपोर्टर ऑफ इंपोर्टेड गुड्स, उसने क्या कर लिया है, ये उसने गुड्स एंटर किए हैं वेयर हाउसिंग के लिए, एंड सेम कैन नॉट बी क्लियर्ड विद इन रीजनेबल टाइम। सच गुड्स में पेंडिंग क्लियरेंस बी परमिटेड टू बी डिपॉजिटेड इन पब्लिक वेयर हाउस, पब्लिक वेयर हाउस में जमा कराए जा सकते हैं फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 30 डेज। और ये गुड्स वेयर हाउस गुड्स नहीं माने जाएंगे, वेयर हाउसिंग के प्रोविजंस यहाँ अप्लाई नहीं होंगे, दैट इज वेयर हाउसिंग विदाउट वेयर हाउसिंग। तो जो स्टैंड है कस्टम ऑफिसर मांग रहा है इससे बॉन्ड, वो करेक्ट नहीं है। फिर ये तो आप थियोरेटिकल क्वेश्चंस हैं, एक बार गो थ्रू कर लेना। रिविजनल अथॉरिटी कौन कौन से ऑर्डर्स रिवाइज नहीं कर सकती, ये अपन ने डिस्कशन किया हुआ है थ्योरी में कि जो द ऑर्डर्स विच आर सब्जेक्ट मैटर ऑफ अपील बिफोर द एपेलेट अथॉरिटी या ट्रिब्यूनल या फिर सुप्रीम कोर्ट, टाइमलाइंस का डिस्कस कर लेना। 6 महीने से ज़्यादा एक्सपायर नहीं हुआ है, 6 महीने से कम का पीरियड ही रहा है अभी ऑर्डर में, या 3 साल से ज़्यादा का पीरियड हो चुका है, या फिर रिविजनल ऑर्डर कैन नॉट बी रिवाइज्ड, ये भी था। सेम ऑर्डर कैन नॉट बी रिवाइज्ड ट्वाइस, एक ही ऑर्डर जो रिवीजन में कैन नॉट बी रिवाइज्ड ट्वाइस। ये सब चीज़ें आपको इसमें मेंशन करनी है। सर्च वारंट क्या होता है, बेसिकली इट इज़ अ रिटन अथॉरिटी विच हैज़ बीन गिवन बाय द ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट कमिश्नर टू गो गेट द प्रीमाइसेस सर्च्ड, और उसमें कौन सी प्रीमाइसेस की सर्च होगी, क्या वायलेशन हुआ है, नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द पर्सन हु इज ऑथराइज्ड टू कैरी आउट द सर्च, ठीक है। ऑथराइजिंग ऑफिसर्स कौन है, उनके ऑफिसर्स, उनकी डेजिग्नेशन, उनकी सील, डेट एंड प्लेस ऑफ इशू ऑफ सर्च वारंट, ये सब चीज़ें मेंशन्ड है। तो थ्योरेटिकल है, उसी हिसाब से ये सेक्शन 72 भी थ्योरेटिकल पूछ लिया बिल्कुल ही, जो बच्चा कभी करता नहीं है। जैसे कौन कौन से ऑफिसर्स हैं, पुलिस के ऑफिसर्स हैं, रेलवे के ऑफिसर्स हैं, जो कस्टम के ऑफिसर्स हैं, ऑफिसर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, दे आर एंगेज इन कलेक्शन ऑफ जीएसटी, या फिर लैंड रेवेन्यू, विलेज ऑफिसर्स हैं, ये सब ऑफिसर्स असिस्ट करते हैं। फिर नेशनल ट्रेड फैसिलिटेशन एक्शन प्लान के बारे में पूछ लिया एफटीपी में, तो यू कैन गो थ्रू दीज इज अ थ्योरेटिकल क्वेश्चन। तो पेपर वाज नॉट वेरी मच डिफिकल्ट, एवरेज पेपर था, अमेंडमेंट बेस्ड पेपर था, अगर आप उसको सही से करते देन यू कैन डेफिनेटली स्कोर एग्जामिनेशन मार्क्स। तो जैसे अभी अपन ने देखा, एक बार वो भी चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। ये अपने शॉर्ट जो क्वेश्चंस थे, ये अपन ने इस बार जो शॉर्ट क्वेश्चंस थे ये देखे थे। तो अब देखो एक इस तरह के क्वेश्चन जो आए एग्जाम में, ये एक क्वेश्चन अपन ने पूछा था जो पालनपुर इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड सप्लायर एंगेज इन प्रोवाइडिंग एक्सपर्ट रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस सर्विसेज ऑफ लार्ज पावर प्लांट्स। तो ये बच्चों ने बताया एज इट इज़ जो क्वेश्चन है, ट्रक सेंड टू क्लाइंट लोकेशन और वैल्यू ऑफ आइटम्स कंटेन इन ट्रक, स्टैंड अलोन मशीन, इस पे पूरा का पूरा इन्होंने जो ये क्वेश्चन था पूरा एमसीक्यू बनाया इस पे, ये पूरा का पूरा एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन बनाया गया है। तो दिस वाज आस्क्ड इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जो अपने शॉर्ट क्वेश्चन में थे, ये पूरा एक 10 नंबर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में से ये पूरा क्वेश्चन एज इट इज पूछा गया है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट जो अपने था यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे गए, अब जो ये एडवर्टाइजिंग कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन, उसके अलावा जो आपके डीवीडी प्लेयर्स ओवर द काउंटर परचेज किया गया बाय कमलेश अनरजिस्टर्ड बायर हु टुक टू हिज रेजिडेंस इन हरियाणा, इनवॉइस मेंशंस ओनली द नेम एंड स्टेट, ये एज इट इज अपन ने पूछा। हाउएवर द कंप्लीट एड्रेस ऑफ हरियाणा इज मिसिंग, ये भी क्वेश्चन आया था एज इट इज, प्लेस ऑफ सप्लाई वाले क्वेश्चन में भी आ गया और उधर भी आ गया, हरियाणा वाला ही क्वेश्चन आ गया एज इट इज। उसके बाद देखिए जो शॉर्ट क्वेश्चंस की हम बात कर रहे हैं, जो अपन ने कोई शॉर्ट क्वेश्चन पूछे, फिर ये लोटो ऑनलाइन गेमिंग का बिल्कुल मास्टर वॉलेट में जमा कराए, 49,000 रिसीव हुए उसको, फिर वापस से बैट प्लेस कर दिया। ये टोटल क्वेश्चन आरटीबी में भी था,
अपन ने भी पूछा था, और कितना अमाउंट उसको रिटर्न होगा। तो वो एज इट इज़ क्वेश्चन ये भी आ गया, ठीक है। एज इट इज़ शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन इन्होंने किए, दे कैन डेफिनेटली स्कोर से दीज मार्क्स, एग्जामिनेशन मार्क्स। फिर नेक्स्ट देखो, यहाँ पे जो हमारा डिस्कशन था, फिर जो एक क्वेश्चन अपन ने पूछा था टीसीएस का, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स का, तो अगर स्टूडेंट ने इतना भी आइडिया ले लिया, जो अपन ने जैसे क्वेश्चन बनाया ई कॉमर्स ऑपरेटर का कि ये वेब पोर्टल में कर रहा है और इस तरह की सर्विसेज दे रहा है, तो उसको एक आइडिया मिल जाता है कि भाई एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें रिटर्न भी हो रहा है, किस तरह से आपने को उसको एडजस्ट करके टैक्स कलेक्ट करना है। तो टीसीएस मोर और लेस सिमिलर क्वेश्चन वाज देयर। और ये अपन ने जो आईटीसी वाला पूछा, मतलब रिफंड वाला पूछा था, इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड ऑन इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ एक्सपोर्टेड गुड्स विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ गुड्स सप्लाइड इन इंडिया, मोर और लेस सेम रिफंड का क्वेश्चन उन्होंने एग्जाम में पूछा। फिर बात आई किसकी, प्री डिपॉजिट वाला। अगर प्री डिपॉजिट देखें अपील्स और रिविजन में, तो प्री डिपॉजिट वाला पार्ट भी अपन ने पूछा था। शॉर्ट में ये प्री डिपॉजिट वाला पार्ट देखो। ऑफेंसेस में अपन ने कंपाउंडिंग लिमिट का क्वेश्चन एज इट इज आया है, डिपार्टमेंट ने 6.2 करोड़ की ये कंपाउंडिंग वाला अमाउंट क्वेश्चन एज इट इज आया है, जिसमें मैक्सिमम और मिनिमम 50%, 75% ये नहीं है जो रूल्स के हिसाब से लिमिट, तो एज इट इज ये क्वेश्चन आया। फिर प्री डिपॉजिट वाला आ गया कि भाई कितना प्री सेकेंड अपीलेट अथॉरिटी में कितना आपको प्री डिपॉजिट करना पड़ेगा, वो चीज़ आ गई। तो मोर और लेस जहाँ तक कस्टम की बात है, कस्टम में भी तो क्वेश्चंस जो थे, जैसे आपको बैगेज का बता रहा था मैं, बैगेज में भी अपन ने ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस वाला ही पूछा था, वी हैव आस्क्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस ओनली। तो दीज आर सर्टेन शॉर्ट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट थे। और वैसे के वैसे क्वेश्चन, जैसे ही आप ये एंगेज था 9 महीने की जगह वो 14 महीने कर दिया गया, बाकी सेम चीज़ है। और इसमें भी माइक्रोवेव ओवन आ रहा है, तो वहाँ भी माइक्रोवेव ओवन से रिलेटेड था। तो बच्चे ने अगर ये पढ़ा हुआ है रूल 6 जरा सा भी उसको ये आ जाता है, तो ये वाला क्वेश्चन भी क्या स्ट्राइक आराम से उसको कर सकता था। तो फंडामेंटली आवर शॉर्ट क्वेश्चंस, और जो अपन ने टेस्ट सीरीज कंडक्ट की थी, सब कुछ उसमें से था। तो यू कुड डेफिनेटली अवेल से एग्जामिनेशन मार्क्स। अच्छी से अगर आप कंपाइलर भी पढ़ लेते हैं, तो अब ये सब चीज़ें ई बुक फॉर्म में इसलिए आ रही है क्योंकि इट्स वेरी इजी एंड कन्वीनियंट, और पढ़ना बहुत आसान हो जाता है। सबके पास लैपटॉप है, सबके पास टैब्स हैं, सब इवन मोबाइल है, मोबाइल में सब चीज़ें इजीली आप पढ़ सकते हो, देख सकते हो, कर सकते हो, ऐसी कोई वहाँ डिफ़िकल्टी नहीं आती है। एंड वाई टू वेस्ट मनी, फिजिकल फॉर्म के अंदर इतना पैसा, आपके कागज़ वेस्टेज सब कुछ हो रहा है, पेड़ कट रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है। इट्स वेरी सिंपल मैकेनिज्म, बहुत इजीली पूरी सब चीज़ें, बजट तक, इवन इंडिया का गवर्नमेंट का बजट भी अब कोई पब्लिश नहीं होता है, नोटिफिकेशन सारे आपको अवेलेबल होते हैं साइटों पे, हर चीज़ साइट पे अवेलेबल है, केसेस भी सब चीज़ साइटों पे अवेलेबल है। तो वाई वी शुड गो कि भाई हाँ नहीं ये वो 10 बात करें। जो ईजीएस्ट वे है, ईजीएस्ट सोर्स है, ई बुक फॉर्म के अंदर सब चीज़ अवेलेबल है, जो कि डाउनलोडेबल है, जिसको प्रिंट कराना है वो प्रिंट करा सकता है, पर मेरे हिसाब से ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप सही से पढ़ लो और आपके पास टैब है, राइटिंग पैड राइटिंग के लिए है, उसमें पेन है, तो आप वहीं के वहीं नोट्स भी बना सकते हो। वन नोट में सारे नोट्स बनते हैं, वही एक तरह से आपकी कैरिंग बुक हो गई जो आप कैरी कर सकते हो, ठीक है। तो सिंपल वॉज द क्वेश्चन पेपर वॉज सिंपल। इस बार भी जो बच्चे आगे अटेम्प्ट नवंबर में देंगे, उनके लिए भी अलग से शॉर्ट क्वेश्चन रिलीज होंगे। 100% गारंटी करते हैं कि भाई 50% पेपर तो अपने उसमें से आना ही आना है, बाकी तो सबकी अपनी अपनी किस्मत होती है। सो ऑल दी बेस्ट फॉर एग्जाम्स, आगे वर्क करो। ये अपन ने पूरा अच्छे से पूरा पेपर का डिस्कशन कर लिया था। दिस वॉज आवर डिस्कशन रिलेटिंग टू द पेपर। पेपर वॉज सिंपल, अमेंडमेंट बेस्ड था,
अच्छे से मार्क्स आ सकते थे, इसमें कोई ऐसी डिफ़िकल्टी नहीं थी। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।